محبت ہم سفر میری راستہ رفت۔ ہاں تو برخوردار بتائیے قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر دوبارہ دریافت کیا۔ وہ ٹھس انداز میں ہنوز خاموش بیٹھا تھا۔ قبول ہے جی قبول ہے، دادا جان نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے قاضی صاحب کو جواب دیا۔ بزرگوار آپ خاموش رہیں، مجھے بچے کی رضامندی چاہیے۔ انہوں نے دادا جان کو خاموش کروانے کے بعد دوبارہ بچے کو مخاطب کیا۔ ہاں تو بیٹا بتائیے، آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ بہت تحمل سے انہوں نے پھر دریافت کیا۔ یار حد ہو گئی، کہہ تو دیا قبول ہے، میں دادا ہوں اس کا، میری زبان پر بھی اعتبار نہیں۔ اگر قبول نہ ہوتا تو اتنی بڑی تقریب کاہے کو منعقد کرتے؟ دادا جان دوبارہ بول اٹھے تھے۔ بزرگوار نکاح آپ کا نہیں ہو رہا، رضامندی لڑکے کو ہی دینا پڑے گی، یہ شرعی تقاضا ہے، اب براہ کرم خاموش رہیں۔ قاضی صاحب نے خوشمگی نگاہوں سے انہیں گھورا تھا۔ ہاں تو برخوردار، میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو مریم سکندر بنت سکندر جمال پرویز حق مہر؟ قاضی صاحب نے فصیح و بلیغ عبارت پھر سے دہرائی تھی۔ قبول ہے جی، اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے رضامندی کا اظہار کیا۔ نکاح کی کاروائی پوری ہوتے ہی مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ سب سے پہلے تو دادا جان نے ہی زوردار انداز میں پیٹھ تھپکی تھی، پھر اویس والہانہ انداز میں گلے ملنے آگے بڑھا تھا۔ کیا ہے؟ اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کو نظر انداز کر کے اس نے سرد مہری سے دریافت کیا۔ رسم ہے یار، نکاح کے بعد گلے ملتے ہیں۔ اویس نے دانت نکوستے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، کسی سے بھی مل لو، میرے گلے لگنا ضروری ہے کیا؟ وہ بدستور خفا تھا۔ برخوردار نکاح آپ کا ہوا ہے، معائنہ کا بھی آپ سے ہی کیا جائے گا۔ قاضی صاحب رجسٹر سنبھالتے سنبھالتے بلا ارادہ ہی نصیحت کر بیٹھے۔ کیوں، یہ بھی کوئی شرعی تقاضا ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ اچھا بس اب اپنے چہرے کے زاویے درست کرو، ماموں بہت ناراضی سے دیکھ رہے ہیں تجھے۔ اویس نے سرگوشی کی، اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ابو واقعی خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے، شاید اس کی بیزاری ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ پائی تھی۔ ابو کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بادل نخواستہ اٹھا تھا اور اویس سے گلے ملتے ہوئے جبری مسکراہٹ بھی چہرے پر سجا لی۔ بے وقوف لڑکی، پہلے کپڑے تو بدل لیتی، پھر آرام سے کھانا کھاتے۔ ماہین نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اسے ایک بار پھر کپڑے بدلنے کا مشورہ دیا۔ اف ماہین، بھوک کے مارے بے ہوش ہونے لگی ہوں۔ اپنی ساری زندگی میں اتنی دیر ٹک کر ایک جگہ نہیں بیٹھی جتنا آج بیٹھنا پڑا، اور پھر سب لوگ میرے سامنے ہی دعوت اڑا رہے تھے، مجھ سے کسی نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا۔ سچی اتنی زبردست خوشبو تھی بریانی کی، میرے تو منہ میں پانی بھر بھر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹرے اپنی جانب کھسکائی۔ اچھا میں سویٹ ڈش بھی لے آؤں؟ ماہین ہنستے ہوئے باہر چلی گئی اور اسی لمحے انصر لاؤنج میں داخل ہوا۔ پہلی نظر اسی پر پڑی جو دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے ایک ہاتھ میں پلیٹ تھامے چاول ڈالنے ہی والی تھی۔ ابھی کپڑے تبدیل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی تھی۔ خیر یہ ماننے کی بات تھی کہ وہ آج خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کامدانی سوٹ، ماتھے پر نازک بندیا، دونوں ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں، سلیقے سے کیے گئے میک اپ کٹ نے اس کے حسن کو دو آتشا کر دیا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ ٹھٹک کر رک گیا، گویا پہچان ہی نہ پایا ہو۔ آؤ انصر، کھانا کھا لیا تم نے؟ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی جبھی بے تکلفی سے مخاطب کیا، حالانکہ اس کو دیکھ کر دل نے ایک دھڑکن مس ضرور کی تھی۔ ماہین کہاں ہے؟ انصر نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ میٹھا لینے گئی ہے، آتی ہی ہوگی۔ مریم اس کی سنجیدگی پر حیران تو ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل آرام سے جواب دے کر کھانا کھانے لگی۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر بنا کچھ بولے واپس پلٹ گیا تھا۔ ابھی انصر بھائی آئے تھے؟ ماہین نے آتے کے ساتھ ہی پوچھا۔ اس نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ تھینک گاڈ، انہوں نے تمہیں چینج کرنے سے پہلے ہی دیکھ لیا، بیوٹیشن کی محنت تو وصول ہوئی۔ ویسے کیا کہہ رہے تھے؟ ماہین شرارتی ہوئی۔ کچھ نہیں، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، پھر کافی دیر تک کھڑا مجھے گھورتا رہا اور چلا گیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ماہین ہنس پڑی۔ تمہیں محبت سے دیکھ رہے ہوں گے، تم آج لگ بھی تو بہت پیاری رہی ہو۔ پتہ نہیں ماہین، لیکن میں انصر کے رویے سے الجھ ضرور گئی ہوں۔ وہ اتنا سنجیدہ تو کبھی بھی نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس رشتے پر… ایسی کوئی بات نہیں، تم فضول کے وہم مت پالو۔ ماہین نے اسے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ انصر بھائی تمہیں دل ہی دل میں بہت پسند کرتے ہیں۔ اچھا، وہ مجھے دل ہی دل میں بہت پسند کرتا ہے، اور یہ بات اس نے تمہیں خواب میں آ کر بتائی؟ ماہین کے پر یقین انداز پر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسو مت، وہ میرے بھائی ہیں، میں جانتی ہوں انہیں اچھے طریقے سے۔ ماہین برا مان گئی تھی۔ اچھا چھوڑو، کھانا کھاؤ، واقعی بہت مزیدار ہے۔ مریم نے موضوع بدلا اور ماہین بھی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صبح کا آغاز بالکل معمول کے مطابق ہوا تھا۔ مریم کہاں ہے؟
नाश्ता नहीं करना उसने? नाश्ते की मेज पर जब सब आ बैठे तो दादा जान को ख्याल आया। शर्मा रही होगी अब्बा जी, अम्मी ने हंसते हुए ख्याल जाहिर किया। नहीं, मेरा ख्याल है कि तबीयत ठीक नहीं है उसकी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी, कह रही थी सर में दर्द है। माहिर ने लब कुशाई की। कल माशाल्लाह बहुत प्यारी भी तो लग रही थी, नजर ही ना लग गई हो। मैंने अनीसा से कहा भी था कि नजर उतार दे। अम्मी को फिक्र हुई। अंसर बेदिली से नाश्ता करता रहा, गोया इस जिक्र में अब उसे उसे कोई दिलचस्पी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। इसी लम्हे हंसती मुस्कुराती मरियम अंदर दाखिल हुई थी। तबीयत ठीक है बेटा? अबू ने प्यार से पूछा। मुझे क्या होना है ताया अबू, बस रात को जरा देर से आंख लगी, थकन बहुत हो गई थी ना, सर में भी दर्द हो रहा था। सुबह नमाज के बाद पेन किलर ले ली थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, उसने बशाशत से जवाब दिया। खाली पेट गोली खा ली? कितनी बार मना किया है, रिएक्शन हो सकता है। दादा जान का जहन पहली बात में ही अटक गया था। खाली पेट कहाँ था दादा जान, रात को इतनी देर से खाना खाया था, अब अलबत्ता बहुत भूख लग रही है। अंसर, जरा जैम की शीशी पकड़ाना। एक ही सांस में दादा जान को जवाब देकर अंसर को मुखातिब किया, वही पहले जैसी बेतकल्लुफी का अंदाज। अम्मी का ख्याल था शर्मा रही होगी। दिल में कोड़ते बेजार उसकी जानिब बढ़ाया था। उसके चेहरे के तासुरात देखकर माहीन को हंसी आ गई। उसने वो मुश्किल जल्दी से चाय के कप पर झुकते हुए हंसी दबाई थी। मैंने इतनी बेजार शक्ल वाला दूल्हा अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तस्वीरें धुल कर आ गई थी और अब अवैस एक तस्वीर देखते हुए तबसरा कर रहा था। अब तो देख लिया है ना, वो हनूज जला भुना था। हाँ, अब देख लिया है। ना सिर्फ मैंने बल्कि दुनिया भर ने। अब बहुत हो गया आंसर। मरियम हमारे खानदान की इज्जत है। हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर लोग ये तासुर लें कि तू इस रिश्ते पर राजी नहीं है। और फिर क्या कमी है मरियम में, जो तेरे चेहरे के जाविये ठीक ही नहीं हो रहे? अवैस इस बार संजीदगी से कह रहा था। मरियम में कोई कमी नहीं है, कमी तो मुझ में है। अवैस, सब घर वालों का एहसान कि उन्होंने मुझ जैसे शख्स के हाथ में मरियम का हाथ थमा दिया है। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। अवैस चुपचाप उसे देखे गया। ओके सॉरी भाई, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा बिगड़ा मूड जल्द दुरुस्त हो जाए। इससे ज्यादा अकड़ दिखाना उसकी सरिश्त में था ही नहीं। तभी हार मानते हुए बोला। अवैस उसका कंधा टपकते हुए मुस्कुरा दिया था। मैंने सब लोगों की खुशी की खातिर एक कॉम्प्रोमाइज किया है अवैस, और जाहिर है उसे निभाऊंगा भी, मगर मुझे उसके लिए वक्त चाहिए। गुड, मुझे तुम जैसे शरीफ लड़के से यही तवक्को थी। अवैस ने शरारत से उसे छेड़ा तो इस बार वो भी मुस्कुरा दिया। मैं जरा मरियम का भी हाल अहवाल पूछ लूं, चाय बनाने गई थी मेरे लिए, इतनी देर हो गई, हो सकता है पकोड़े भी बनाने लगी हो, खुशबू तो कुछ ऐसी ही आ रही है। अवैस खुशबू का ताकुब करते हुए बाहर चला गया। वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया, फिर गैर इरादी तौर पर तस्वीरों का एल्बम उठाकर खोला। पहली तस्वीर मरियम ही की थी। माहीन उसकी जानिब झुकी कुछ कह रही थी और वो नजर झुकाए मुस्कुरा रही थी। काफी देर तक वो तस्वीर पर नजर जमाए बैठा रहा, फिर अगली तस्वीर पलट दी और हैरत अंगेज तौर पर पूरा एल्बम देखने के बाद बिगड़े मूड में खासा अफाका हुआ था। आज बहुत दिनों बाद उसे फरागत मुयस्सर आई थी। 12 बजे सोकर उठा तो अम्मी से जबरदस्त सा नाश्ता बनवाया, फिर सुकून से टीवी देखते हुए नाश्ता किया। अंसर बेटा फारिग हो? अम्मी ने किचन से उसे पुकारा। फारिग ही फारिग क्यों, क्या बात है? वो चाय का कप उठाए किचन में ही चला आया था। वो जरा मरियम को लेने कॉलेज तक जाना था। अम्मी ने हंडिया में डोई चलाते हुए सरसरी से अंदाज में बताया। क्यों, क्या माहिन कॉलेज नहीं गई? रोज तो दोनों इकट्ठी आती हैं, उसने हैरत से पूछा। माहिन बेचारी को तो रात से बुखार हो रहा है, घंटा हो गया है डॉक्टर के यहाँ गए हुए। अब्बाजी के साथ गई है, और तुम्हें तो पता है अब्बाजी और डॉक्टर वास्ती की दोस्ती का। मुझे तो लगता है बच्ची को एक तरफ बिठाकर शतरंज की बाजी जमा ली होगी। हाँ, सही कह रही हैं, दिन में तो वास्ती साहब बेचारे मक्खियां ही मारते हैं, शाम को फिर कोई एक आध मरीज चक्कर लगा लेता है। लेकिन भाई हमारे बच्चों को तो डॉक्टर वास्ती की दवा से ही आराम आता है। अच्छा चलो छोड़ो, कॉलेज की छुट्टी होने ही वाली होगी, जरा भागकर मरियम को ले आओ मेरे बच्चे। अम्मी ने उसे फिर याद दिलाया। उफ, वो अम्मी बच्ची नहीं है वो, रोज भी तो दोनों रिक्शे पर ही आती हैं, आ जाएगी खुद ही। उसे सख्त कोफ्त हुई, अकेली कैसे आएगी? सुबह भी तुम्हारे अब्बू छोड़ कर आए थे, और मैंने ही कहा था कि छुट्टी के वक्त भेज दूंगी किसी को लेने। 21वीं सदी है अम्मी जी, लड़कियों में इतना एतमाद होना चाहिए कि। अच्छा बस, अब बहस में मेरा वक्त जाया ना करो। नहीं जाना तो ना जाओ, मैं खुद चली जाती हूँ। रिक्शे पर आने जाने में देर ही कितनी लगेगी? अम्मी ने नाराज होकर चूल्हा बंद कर दिया, फिर साफी से हाथ साफ करते हुए बाहर निकली थी। ठहरें, जा रहा हूँ मैं। उसने बादल नख्वास्ता उन्हें पुकारा था और वो शायद उसी पुकार की मुंतजिर थी। फौरन अंदर आकर चूल्हा दोबारा जला लिया। छुट्टी नहीं करवा सकती थी आप उसे? आइंदा माहीन को ना जाना हो तो उसे भी मत भेजिएगा, मुझसे ये ड्यूटियां नहीं निभाई जाती। वो बुड़बुड़ा रहा था।
ये ड्यूटी तो बेटा जी सारी उम्र निभानी पड़ेगी, अम्मी ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। क्यों, क्या सारी उम्र कॉलेज में पढ़ने का इरादा है उसका? उसने इस जाहिर अंदाज में दरियाफ्त किया। सारी उम्र क्यों, तुम्हारी जैसी तो हालत नहीं उसकी कि एक क्लास में 3 साल लगा दे। खैर से पहली पोजीशन लेने वालों में से है। अम्मी ने फौरन हिसाब चुका दिया था। वो बिना जवाब दिए बाहर निकल गया। कभी कभी तो उसे लगता था कि अम्मी ने उसके बजाय मरियम को जन्म दिया है, बल्कि एक अम्मी ही क्या, घर भर की लाडली थी वो, और वो खुद तमाम घर वालों की नज़र में नालायक, निकट्टू और लापरवाह। फिर जाने सबने अपनी लाडो का हाथ उसके हाथ में क्यों थमा दिया। गुस्से में खोलते हुए वो कॉलेज पहुंचा था। गर्ल्स कॉलेज जाना और फिर वहाँ मतलूबा शख्सियत को ढूंढना उसके लिए बहुत बड़ा मसला होता था। मगर आज इत्तेफाक से मरियम अपनी दोस्त के साथ कॉलेज गेट से निकल रही थी। अचानक उसकी दोस्त की निगाह अंसर पर पड़ी थी। उसे मरियम के कान में सरगोशी करके शायद उसे अंसर की आमद के बारे में बताया था, और इससे पहले वो उसकी बाइक तक पहुंचती 3-4 लड़कियां करीब आ गई थीं। आप अंसर महमूद हैं ना? बहुत इश्तियाक से एक लड़की ने दरियाफ्त किया। यकीनन कोई और मौका होता तो वो लड़कियों को देखते ही बाइक भगा कर ले जाता, मगर आज सिर्फ मरियम को चिढ़ाने के लिए बत्तीसी की नुमाइश में कोई हर्ज ना समझा। फिर जाने कैसे देखते ही देखते लड़कियों का झुमघट्टा बढ़ता गया। उसने एक निगाह मरियम पर डाली, जो बहुत सुकून से फाइल हाथ में थामे उसी के इंतजार में खड़ी थी, और अब वो वाकई लड़कियों से पीछा छुड़ाकर उस तक जाना चाह रहा था। थोड़ी देर को चिढ़ाना अलग बात, और यूं उसे अपने इंतजार में खड़ा देखना भी अच्छा न लग रहा था। मगर लड़कियां थीं कि उमड़ी आ रही थी। काफी देर तक वो लड़कियों को ऑटोग्राफ देता रहा, फिर बहुत मुश्किल से माजरत करते हुए पीछा छुड़ाया था। मगर अब दूर दूर और नज़दीक निगाह दौड़ाने पर मरियम सिकंदर ना मिली। कहाँ चली गई? उसे एक लम्हे को परेशानी, फिर झुंझुलाहट ने आन घेरा। शायद मेरे इंतजार से थक कर वापस कॉलेज के अंदर चली गई हो। जहन में यही बात आ सकी। कब तक बेवकूफ़ों की तरह इंतजार करूं? आती रहेगी खुद। 10 मिनट के बाद शदीद गुस्से के आलम में वो वापस पलट गया था, और घर में दाखिल होने के साथ ही गुस्सा सबा हो गया। मरियम पानी का ग्लास हाथ में लिए किचन से निकल रही थी। उस पर एक निगाह गलत फिर अपने कमरे में घुस गई। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। अंसर अम्मी जाने कब पीछे आकर खड़ी हो गई थी। जाने कि आप अब भी मुझ पर नाराज हो रही हैं? वो अपनी खफगी भूलकर हैरान हुआ। तुम कब सुधरोगे अंसर? बच्ची अकेली वापस आई है। तो पूछे बच्ची से कि क्यों वापस अकेली आई है। क्या मैं गया नहीं था उसे लेने? देख तो लिया था उसने। फिर क्या जल्दी पड़ी थी? जरा सा इंतजार नहीं कर सकती थी? जरा सा इंतजार? वो क्यों अपना तमाशा बनवाती? तुमने जो जमघटा इकट्ठा कर लिया था। मैंने नहीं इकट्ठा किया था, खुद इकट्ठे हुए थे लोग मेरे गिर्द। उसने दानिस्ता लड़कियों की जगह लोग का लफ्ज इस्तेमाल किया। मुबादा अम्मी मजीद बिगड़े। हाँ, ऐसे तो तुम प्रिंस ऑफ वेल्स हो, जो सब तुम्हारे ही गिर्द परवानों की तरह जमा हो जाते हैं। अम्मी उसके लिए हमेशा बहुत अजीब व गरीब तशबीहात इस्तेमाल करती थीं। बावजूद गुस्से के उसे हंसी आ गई। प्रिंसेस कहकर आप मेरी तौहीन कर रही हैं अम्मी। कहना है तो प्रिंस कह लें। इतना नाराज क्यों हो रही हैं? आपको तो फख्र होना चाहिए कि आपका बेटा लोगों में पॉपुलर है। बस कर लिया हमने तुम पे फख्र। ऐसा कौन सा एटमी धमाका किया है तुमने? ढंग की चाय तक तो बनानी आती नहीं। बच्ची को लेने कॉलेज भेजा था, वो काम भी ना हो सका। अम्मी बुड़बुड़ाते हुए चली गई, और वो हमेशा की तरह उनकी बातों में रब्त ढूंढने की कोशिश में जी भर कर नाकाम हुआ था। ये नहीं था कि उसे मरियम से कोई ज़ाती दुश्मनी थी। थोड़े दिनों पहले तक दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो उसके इकलौते चचा की इकलौती बेटी थी। सिकंदर चचा बहुत थोड़ी ज़िंदगी लिखवा कर लाए थे। शादी के महज 4 साल बाद एक रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए। मरियम माँ के साथ ननिहाल चली गई, मगर महरीन चची के भाइयों ने जल्द ही उनका अक़्द सानी कर दिया। नई ज़िंदगी में मरियम की गुंजाइश ना निकल सकी। वो अपने ननिहाल में ही रहने लगी। दादा इस बात से लाइम थे। पोती की मोहब्बत से मजबूर होकर जब एक दिन दादा उसके ननिहाल पहुंचे तो वो बुखार में फुनक रही थी। लाडली पोती की बदतर हालत देखकर उनसे जब्त ना हो सका। वो मरियम को वापस ले आए। मामू मुमानियों ने रस्मी एतराज़ भी ना किया। रही माँ, तो वो तो शादी के बाद जद्दा जा बसी थीं। बीते बरसों में या तो बेटी की याद उन्हें वाकई न सताई, या फिर मजबूरियों ने हाथ पांव बांध दिए थे। सिर्फ ईद त्यौहार पर वो बेटी से तफसीली फ़ोन पर बात करके उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त कर लेना ही बहुत जानती थीं। मगर कुदरत ने जहाँ मरियम से कुछ रिश्ते छीने थे, वहाँ बहुत से रिश्ते और वाफर मोहब्बतें उसकी झोली में डाल दी थीं। दादा, अब्बू, अम्मी, फूफो, वो सब की चहेती और लाडली थी।
وہ اس سے پورے 3 سال بڑا تھا، مگر مریم نے کبھی اسے خود سے بڑا سمجھ کر عزت و احترام کا مستحق نہ جانا تھا۔ فطری طور پر وہ بھی من موجی قسم کا لڑکا تھا، لہٰذا خود ہی مریم سے دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ ہاں، کبھی کبھار گھر والوں کی باتیں اسے مریم سے چڑا ضرور دیتی۔ کتنا شاندار رزلٹ آیا ہے مریم کا! پہلے تو سوچ رہے تھے کہ عنصر کے رزلٹ کا انتظار کر لیتے ہیں، اکٹھا سیلیبریٹ کر لیں گے، لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ کیا فائدہ انتظار کا؟ پتہ تو ہے عنصر کا رزلٹ کیسا آئے گا۔ ہم مریم کے لیے ہی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں، کیوں باجی؟ امی دادا جان سے رائے مانگتی۔ ہاں تو اور کیا، اس نالائق نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ اور اس نالائق کے اچھے نمبر مریم کے بہت اچھے نمبروں کے سامنے واقعی کم لگتے۔ آپ مریم کا اور میرا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ 3 کلاس پیچھے ہے وہ مجھ سے، وہ کبھی کبھار چڑھ کر امی کو یاد دلاتا۔ جیسے کارنامے تم انجام دے رہے ہو وہ 3 کلاسیں آگے بھی جا سکتی ہے۔ دادا درمیان میں ضرور لقمہ دیتے۔ ویسے یہ سچ بھی تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پڑھائی میں اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے یونیورسٹی پہنچ ہی گیا اور یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں تو وہ ہمیشہ سے ہی سب سے آگے ہوتا تھا۔ ایک یونیورسٹی فنکشن کی کمپینی کے دوران اسے ایک ٹی وی پروڈیوسر کی جوہر شناس آنکھوں نے منتخب کر لیا۔ ایک پرائیویٹ چینل کی میوزک پروگرام کے لیے انہیں ایک ہینڈسم اور پرکشش شخصیت کے مالک نوجوان کی تلاش تھی، اور عنصر محمود ہر لحاظ سے ان کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ ایک مناسب معاوضے کی آفر کے ساتھ انہوں نے عنصر کو اپروچ کیا تھا۔ سوری سر، میرے ابو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ پیشکش اگرچہ پرکشش تھی، مگر اس نے سنتے کے ساتھ ہی کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ کالج یونیورسٹی کی حد تک ان مشاغل میں حصہ لینا اور بات، مگر یوں دن دہاڑے ٹی وی اسکرین پر نمودار ہونا، یہ تو ہمارے خاندان کی 7 پشتوں میں کبھی نہیں ہوا عنصر۔ یہ ریمارکس مریم کے تھے۔ وہ حسب عادت اسے یہ بات شیئر کیے بنا نہ رہ پایا تھا۔ پھر بھی مریم، اتنا اچھا چانس ہے، معقول معاوضہ بھی دے رہے ہیں، ایک بار ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اپنے انکار کے باوجود اس آفر کو ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ ویسے بھی رضا حیات نے اس کے انکار کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں تھا۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دینا جوان، اتنا گولڈن چانس زندگی میں ایک بار ہی ملتا ہے۔ تمہاری عمر کے لڑکوں کو تو کریز ہوتا ہے شہرت کا، بیٹھے بٹھائے سیلیبریٹی بن جاؤ گے۔ انہوں نے شہرت کا لالچ دیا۔ خیر، شہرت کی مجھے اتنی خواہش نہیں، بس ایک نیا تجربہ کرنے کو طبیعت مچل رہی ہے۔ اس نے مریم سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ دیکھ لو عنصر، یہ ایک ایسی دلدل ہے جو ایک بار میں پاؤں رکھ دے پھر وہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تمہاری تعلیم، تمہارا کیریئر سب متاثر ہوگا۔ اس نے خلوص سے سمجھانا چاہا تھا۔ ارے چھوڑو یار، تمہاری تعلیم، کیریئر اور مستقبل جیسے اس کے بغیر تو بہت روشن ہے نا۔ کیا تیر مار لو گے 2nd ڈویژن میں ایم اے کر کے؟ ماموں کے بزنس میں ہاتھ ہی بٹانا ہے نا۔ اچھا ہے عملی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے کچھ انجوائے ہی کر لیا جائے۔ پھوپھی زاد اویس اور علی تو اس آفر پر ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے عنصر کے بجائے انہیں ٹی وی اسکرین پر آنے کا موقع مل رہا ہو۔ ماہین بھی خوش ہو رہی تھی۔ سچ عنصر بھائی، اتنا اچھا چانس مس نہ کریں۔ میں اپنی سہیلیوں میں خوب شو ماروں گی، 100 جوتے ماروں گا میں تمہیں جو یہ بےہودہ خیال ذہن میں آیا بھی تو۔ ابو کو بھی کچھ سن گن مل گئی تھی، سو اپنی خفگی ظاہر کیے بنا نہ رہ سکے۔ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی عنصر، جو یوں مجھے بڑھاپے میں ذلیل کروا رہے ہو؟ امی نے بھی آپ دیدہ ہو کر شکوہ کیا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں امی جیسے میں کوئی گھر سے بھاگ کر شادی کر رہا ہوں۔ وہ ابو کے بعد امی کے رد عمل پر بھی حیران پریشان رہ گیا تھا۔ ہاں ہاں، ایسی بات کی کسر رہ گئی ہے، کر لو بیٹا جی یہ ارمان بھی پورا۔ اس دن کے دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ اچھا بھلا پچھلے سال ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا، اللہ نے کیوں دوبارہ زندگی دی؟ اب جوان اولاد پسند کی شادی کے لیے گھر پر لات مار کر چلی جائے گی۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کون ہے؟ پہلے ہی شک تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ پڑتا ہے، کوئی پھانس لے گی۔ اکلوتا پوتا ہے میرا، کیا کیا نہیں سوچا تھا۔ دادا الگ دہائیاں دے رہے تھے۔ اس گھر کے لوگوں کے لیے اس کے ذہن میں اپنی ڈفلی، اپنا راگ سے بہتر کوئی اصطلاح سوچتی ہی نہ تھی۔ سو سر پر پاؤں رکھ کر جو بھاگا تو انیسہ پھوپھو کے گھر جا کر دم لیا۔ نرم خوسی انیسہ پھوپھو جو پورے خاندان میں مختلف تھیں، بہت تحمل سے انہوں نے عنصر کی بات سنی اور پھر بہت رسان سے اسے سمجھایا تھا۔
बेटा, टीवी पर आने में कोई कबाहत नहीं है। कौन सा तुम लड़की ज़ात हो? तुम्हारी उम्र के ही इतने काबिल बच्चे टीवी पर दिखाई देते हैं। कोई करंट अफेयर्स के प्रोग्राम की मेज़बानी करता है, कोई मुल्की हालात पर तबसरे करता है, और तो और खबरें पढ़ने वाले ही इतने पढ़े लिखे और काबिल होते हैं। अगर ऐसी ही ऑफ़र तुम्हें भी होती तो मुझे यकीन है कि भैया की खुशी का कोई ठिकाना ही ना होता। मगर गानों के प्रोग्राम की मेज़बानी, तुम खुद सोचो, कोई ऐसी ऐसी काबिल फ़ख्र बात तो है नहीं। अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो मान जाओ। मैं मान जाता फूफो जान, बिल्कुल मान जाता। बल्कि मैंने तो घर वालों को बताने से पहले ही रज़ा हयात को इनकार कर दिया था। मगर अब्बू, अम्मी और दादा जान सब ऐसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं जैसे रंगे हाथों किसी चोर को पकड़ा हो, और जैसे ये मेरे दिल में छुपा कोई बरसों का अरमान हो। ना मेरी कोई वज़ाहत सुनी, ना कुछ बोलने का मौका दिया, बस एकदम चढ़ाई कर दी। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा। मेरे घर वाले मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट ही करते आए हैं। मैं नालायक हूँ, लापरवाह हूँ, और अब तो सबकी नज़रों में किरदार भी मशकूक हो गया। जैसे म्यूज़िक प्रोग्राम की कंपेयरिंग ना हुई, किसी पश्तो फ़िल्म में अदाकारी हो गई। तशबीहात इस्तेमाल करने में वो भी अपने घर वालों से कम ना था। अनीसा फूफो के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। और आप खुद सोचें, क्या कबाहत है इस काम में? चंद घंटों का इतना माकूल मुआवजा दे रहे हैं। टाइमिंग ऐसी कि यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑफ होने के बाद रिकॉर्डिंग होगी, और पहले तो मैं मान भी जाता। मगर अब ये मेरी भी अना का मसला है। ज़िंदगी में हर मामले में घर वालों ने मुझ पर अपनी राय ठोंसी है। ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ, वो लड़का अच्छा नहीं है, उससे दोस्ती छोड़ दो, उस लड़के का बाप काबिल है, उससे दोस्ती बढ़ाओ, इन मज़ामीन का कोई स्कोप नहीं है, फलां सब्जेक्ट तुम्हारे लिए भी ज़्यादा बेहतर है। फुप्पो, मैं कोई इंसान हूँ या मोम की गुड़िया? वो ठीक-ठाक तपा हुआ था। लेकिन मेरे चंदा, फूफो ने प्यार से उसकी पेशानी पर बिखरे बाल समेटे। नहीं फूफो, आप इंसाफ से काम लें। मुझसे ज़्यादा आज़ादी मरियम और माहीन को मिली हुई है। वो अपना हर फैसला अपनी मर्ज़ी से करती हैं। माहीन तो चलो अम्मी अब्बू की अपनी बेटी है। वो तो मरियम को भी मेरे ऊपर इतनी फ़ोकियत देते हैं, जैसे अमेरिका इंडिया को पाकिस्तान पर। अपनी उम्र के मुताबिक कोई शौक जो मैंने पूरा किया हो, बालों की कटिंग तक तो अब्बू की पसंद के मुताबिक करवाता हूँ। उसने इतने दिनों से दिल के में दबी भड़ास निकाली थी। तो फिर देख लो, इतने सारे लड़कों में इस टीवी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर की निगाह तुम पर ही क्यों पड़ी? माशाल्लाह, इतने डिसेंट और डैशिंग लगते हो, इसीलिए ना। पुप्पो उसे पुचकार रही थी। यही तो मैं कह रहा हूँ पुप्पो जानी, कि जब आज तक मैंने खानदान की इज्जत पर बट्टा लगाने वाला कोई काम नहीं किया, तो अब क्यों करूँगा? सिर्फ 45 मिनट की एक प्रोग्राम की कंपेयरिंग, लाइव टेलीफोन कॉल्स, और बस। वो अपने मौकिफ पर डटा हुआ था। पुप्पो ठंडा सांस लेकर रह गई। तो भैया, क्या कबाहत है? 45 मिनट के प्रोग्राम की कंपेयरिंग, लाइव टेलीफोन कॉल्स, और बस। तो तुम भी भतीजे की तरफदार बनकर आ गई। हमारे खानदान में पहले कभी किसी ने ऐसा काम किया भी है? तो हमारे खानदान में कभी किसी को ऐसे काम की ऑफर भी हुई है? अब दादा जान, अब्बू या अम्मी तो गानों के प्रोग्रामों की मेजबानी करने से रहे। माहीन मरियम के कान में बोली। उसका वोट भाई की तरफ था। जवान खून है भैया, आपको अपने अंदर ही लचक पैदा करनी पड़ेगी, वरना इस उम्र की बगावत बहुत खतरनाक होती है। अच्छा मौका है, ये बात मान लें इस मुतालबे पर कि वो मुस्तकबिल में आपकी कोई बात मान लेगा। पप्पो की रगों में भी आखिर दादा का ही खून था। बहुत दूर रस निगाह पाई थी उन्होंने। अब्बू ने पुरसोच अंदाज में हुंकारा भरा था। ठीक है, बुलाओ उस नाहंचार को। ये अब्बू की तरफ से मशरूत मौफी का ऐलान था। और जिस काम को वो आसान समझ रहा था, वो जब शुरू किया तो दांतों पसीना आ गया। कैमरे का सामना करना हरगिज़ इतना आसान नहीं था, और लाइव कॉल्स अटेंड करना, बाज़ कॉल्स तो ऐसी होती थीं कि उसके चक्के छूट जाते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फितरी एतमाद गालिब आता गया। कुछ ही अरसे में उसका प्रोग्राम काफ़ी मकबूल हो गया था। अब्बू ने इजाज़त तो दे दी थी, मगर मूड एक अरसे तक ख़राब रहा। दादा की बुड़बुड़ाहटें भी काफ़ी दिन जारी रहीं। अम्मी खैर अब नाराज़ी वगैरह भुलाकर बहुत शौक से चश्मा लगाकर उसका प्रोग्राम पूरे 45 मिनट तक देखती थीं। माहीन की खुशी का भी कोई ठिकाना ना था। उसकी ख्वाहिश होती तो ये कि अंसर उसे कॉलेज छोड़ आए, और फरमाइश होती थी तो ये कि अंसर उसे कॉलेज से ले आए। और फिर इन दिनों जब वो बहुत एतमाद से अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा था, तो एक लड़की की कॉल्स उसे तंग करने लगीं। उसका मकसद फरमाइश करके गाने सुनने से ज़्यादा अंसर महमूद को तंग करना होता था। आपको पता है आपकी शक्ल किससे मिलती है? वो ऐसे सवालों का आदी था। मसलन आप यकीन करें, आप बिल्कुल मेरे मामू में मिलते हैं। या फिर ये कि मेरी अम्मी कहती हैं कि अंसर की शक्ल देखकर मुझे अपना रामिस याद आता है। वो 5 साल से अमेरिका में होते हैं। और ऐसी कॉल्स का मुस्कुरा कर जवाब देना, उन्हें अपनायत का एहसास दिलाना अब उसके लिए मामूल की बात थी। मगर ये लड़की जो कह रही थी
अंसर, अगर आपका रंग थोड़ा-सा मज़ीद फेयर कर दिया जाए और आप 2 चोटियाँ डाल लें तो यकीन करें बिल्कुल मेरी फूफो में मिलते हैं। वो जवानी में बिल्कुल आप जैसी थीं। शौख़ी और शरारत से भरा ये जुमला सुनकर उसके असाब झुनझुना उठे। हर तीसरे दिन वो लड़की इसी तरह की कोई ऊट-पटांग बात करके उसके ज़ब्त का इम्तिहान लेती। फिर एक दिन उन पुरस्रार टेलीफ़ोन कॉल्स का मुअम्मा भी हल हो गया। रात को वो पानी पीने उठा था, फिर लाउंज की लाइट जलती देखकर वहाँ चला आया। 1 बजे उसका लाइव प्रोग्राम रिपीट टेलीकास्ट होता था और अब सवा 1 बज रहा था। आज तुमने बहुत बुरा किया मरियम। माहीन की खीखी सुनाई दी तो उसके बढ़ते कदम रुक गए। देखो बेचारे अंसर भाई एकदम कितना पजल हो गए हैं। माहीन के कहने पर मरियम ने क्या जवाब दिया वो सुन ना पाया, क्योंकि दिमाग गुत्थी सुलझाने में मसरूफ था और ये गुत्थी सुलझ ही गई। तो ये तुम थीं। अगले ही पल वो लाउंज के अंदर था। मरियम और माहीन दोनों गड़बड़ा गई थीं। माहीन ने जल्दी से उठकर टीवी बंद कर दिया। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है, मगर ये मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि ये हरकत मेरे घर के बंदे की हो सकती है। शदीद गुस्से ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। हालांकि मरियम तो आवाज़ बदल कर बोलती थी, माहीन ने हकलाते हुए वजाहत दी। वो कभी कभार ही गुस्से में आता था, मगर उसे भाई के गुस्से से डर लगता था। मरियम अलबत्ता अब रिलैक्स बैठी थी। मेरी शक्ल तुम्हारी किस फूफो में मिलती है? वो हिसाब बेबाक करने की मूड में था। अनीसा फूफो में, उसने मजे से जवाब दिया। वो चंद लम्हों तक उसे चुपचाप खड़ा घूरता रहा। अगर आइंदा तुमने मुझे तंग किया तो? अधूरे जुमले में वार्निंग छुपी थी। नहीं करेंगे भाई, मरियम से पहले माहीन ने यकीन दहानी करवाई थी। और वो बेवकूफ़ था जो इस यकीन दहानी पर एतबार कर बैठा। ये उस वाक़या के 3 दिन बाद ही की बात थी, जब वो प्रोफ़ेशनल सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए फ़ोन कॉल्स ले रहा था। अवैस कहता था कि ये उसकी मुस्कुराहट ही है, जिसकी वजह से उसके प्रोग्राम में 80% कॉल्स नौजवान लड़कियों की और बाकी 20% नौजवान लड़कियों की वालिदा मोहतरमाओं की होती थी। जी, तो बताइए कौन है हमारे साथ? उसने अपनी दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए टेलीफ़ोन कॉल रिसीव की। मुझे क्या मालूम कि कौन है आपके साथ? टीवी स्क्रीन पर तो इस वक्त आप अकेले ही नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से बेहद संजीदा जवाब मौसूल हुआ। आवाज़ सुनने और पहचानने में उसे 2 सेकंड से भी कम वक्त लगा था। नॉट अगेन। वो दिल ही दिल में बेबसी से बोला। आज पता नहीं वो उसके साथ क्या करने जा रही थी। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? उसने मजबूरन सवाल दोहराया, हालांकि अच्छी तरह जानता था कि फ़ोन की दूसरी तरफ शख्सियत क्या कुछ करती है। आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। जवाब के बजाय शिकवा मौसूल हुआ। ओह सॉरी, आप खुद ही बता दीजिए। क्या ये बताऊं कि मैं क्या करती हूँ? भोलपन से पूछा गया। नहीं, पहले नाम बता दीजिए। वो ज़ब्त की आखिरी हद पर था। मेहरुन्निसा। कितनी नगमगी थी उस आवाज़ में। जी, तो मेहरुन्निसा, कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप? वो जल्द अज जल्द कॉल भुगताना चाह रहा था। मैं गाने नहीं सुनती, दो टोक जवाब मौसूल हुआ। ये क्या बात हुई मेहरुन्निसा? मौसीकी किसको अच्छी नहीं लगती? मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा होती है। वो मुस्कुराकर बात करने पर मजबूर था। नहीं जी, आजकल की जैसी मौसीकी है वो किसी बदरूह की ग़िज़ा तो हो सकती है, लेकिन किसी नेक रूह की ग़िज़ा हरगिज़ नहीं। दूसरी तरफ से कतई अंदाज में राय मौसूल हुई। ओके मेहरुन्निसा, आप अपनी राय के इज़हार में आज़ाद हैं। नाज़रीन, यही हमारे प्रोग्राम की ख़ास बात है कि हम बुरा माने बगैर हर किसी के नुक्ता नज़र को सुनते हैं। तो मेहरुन्निसा, ये बताएं कि आप किसी को कोई मैसेज देना चाहती हैं? वो जल्द अज जल्द कॉल भुगताना चाह रहा था। जी बिल्कुल, मैसेज तो देना है। वो मायने खेज अंदाज में हंसी थी। किसी अनजाने खदशे से अंसर का दिल जोर से धड़का था। हेलो, आप सुन रहे हैं ना मुझे? जी जी बिल्कुल मेहरुन्निसा, आप जल्दी से मैसेज दीजिए, फिर हमने एक और कॉल भी लेनी है। ओके, दरअसल मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से अपने कज़न को मैसेज देना चाहती हूँ। वो इस वक्त घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से गए हुए हैं। अगर वो आपका प्रोग्राम देख रहे हों तो उन्हें मेरा पैगाम है कि उनका रिजल्ट अनाउंस हो गया है। 2 सब्जेक्ट्स में कम पार्ट आई है। उनके अब्बू बहुत गुस्से में हैं, तो जब भी मेरे कज़न घर आएँ तो अपने आप को अब्बू के गुस्से का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करके आएँ। उसने इस शरारती अंदाज में मैसेज रिकॉर्ड करवाया था। ओके मरियम। ओह! मेरा मतलब है मेहरुन्निसा, उम्मीद है आपके कज़न ने ये पैगाम सुन लिया होगा। उसने कहते के साथ ही न राब्ता मुनक़ता कर दिया था। आइए नाज़रीन, अगली कॉल लेने से पहले एक गाना सुनते हैं। उसने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा और कैमरा ऑफ होते ही पानी का गिलास लबों से लगा लिया था। बस इसी दिन से था मैं। रात डरते-डरते जिस वक़्त वो घर में दाख़िल हुआ, अबू उसी के इंतज़ार में टहल रहे थे।
क्यों मियाँ, रोज इसी वक्त तशरीफ आवरी होती है ना? कितने दिन से तुम्हारी माँ ने धोखे में रखा हुआ था। मैं तो खबरनामा देखने के साथ ही नींद की गोली खा लेता था और वो कहती थी इधर आप सोए, इधर अंसर घर आया। आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, साहबजादे के दर्शन किए किए हुए चले जाकर मुलाकात का शर्फ हासिल कर लेते हैं। अब्बू जब तंज करने पर आते थे तो भिगो भिगो कर मारते थे। मैं अब्बू बस वो आज वो हकला गया। सुबह कुछ उम्मीद बंधी थी कि चलो साहबजादे ने जैसे तैसे ही सही मास्टर्स डिग्री तो हासिल कर ली, वरना मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि दो चार सब्जेक्ट्स में लुढ़के पड़े होंगे, मगर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि औलाद की तरफ से सुकून का सांस मिल सके। वो जाने क्या क्या बोल रहे थे, मगर उसका ध्यान पहले फिक्रे में ही अटक गया था। मैं पास हो गया अब्बू, उसे डरते डरते तस्दीक चाहिए थी। जी, सेकंड डिवीजन में, और सिर्फ 5 नंबरों से सेकंड डिवीजन बनी है, वरना उसे इस वरना से कोई सरोकार ना था। उसका दिल खुशी से भंगड़ा डालने को चाह रहा था। दुनिया भर की औलाद कितनी सादतमंद होती है, एक हम हैं। रात 2 बजे आवारा गर्दी करके लौटे हैं साहबजादे। इसी दिन से डरता था मैं, महज इस डर से शोबिस ज्वाइन नहीं करने दे रहा था। कहाँ थे अब तक? अब्बू ने कड़कदार आवाज में पूछा, और उसका जी चाह रहा था कि मरियम की गर्दन इतने जोर से दबाए कि कड़ुक की आवाज दूर दूर तक जाए सुनी जाए। सॉरी अंसर, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। दरअसल हम सब इतने खुश थे, मैंने सोचा तुम्हें अचानक सरप्राइज मिलेगा तो तुम भी बहुत खुश होगे। मुझे क्या मालूम था कि तुम डर के मारे इतना लेट आओगे, और ताया जान भी जाग रहे होंगे। वो वाकई बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। आइंदा मैं ना तो तुम्हें प्रोग्राम में फोन करके तंग करूंगी, ना कोई झूठ ना मजाक। मैंने वाकई पिछले दिनों तुम्हें बहुत सता लिया। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। वो सच्चे दिल से यकीन दहानी करवा रही थी। इट्स ओके। वो मुस्कुरा दिया। वैसे भी वो बुनियादी तौर पर दिल में कदूरत रखने वाला शख्स नहीं था, मगर अब्बू की कदूरत शायद अभी तक धुल ना पाई थी, और धुल भी जाती अगर एक रोज वो एक प्रोग्राम ना देख लेते। भाई, खबरनामा आने वाला है, तुम सब लोग ड्रामा बाद में देख लेना। लाउंज में सब लोगों की महफिल जमी थी जब अब्बू अंदर आए। आपको तो रोज खबरनामे की पड़ी रहती है, आज कोई नई खबर नहीं है, अम्मी ने फैसला कुन अंदाज में इतला दी थी। क्यों भाई, आज के सुशी में खबरों की हड़ताल हुई? अब्बू का मूड हासा खुशगवार था। आज अंसर का स्पेशल शो आएगा भैया। अनीसा पुप्पो भी आज इत्तेफाक से घर आई हुई थी। ये इतला उन्होंने ही खुशी खुशी भाई को सुनाई। हाँ भाई, साहबजादे मशहूर हो गए हैं, और तो और कल डॉक्टर वास्ती के क्लिनिक जाना हुआ तो पड़ोस की मिसेस जाहिद अपनी वालदा के साथ आई हुई थी। उन्होंने अपनी वालिदा से मेरा तारुफ ये कहकर करवाया कि मैं अंसर का बाप हूँ। अब्बू ने जैसे लुत्फ लेते हुए बताया था। कुछ भी था, बेटे का मशहूर होना उन्हें भी अच्छा लगा था। हाँ, तो दुनिया देखती है अंसर का प्रोग्राम। माशाल्लाह खूब मशहूर हो रहा है मेरा बेटा। फखर अम्मी के अंग अंग से जाहिर हो रहा था। अबू मुस्कुरा दिए। बस एक आपने कसम खाई है बेटे को टीवी पर ना देखने की। ऐसा प्यारा लगता है कि मुझे तो धड़का ही लगा रहता है किसी की नजर न लग जाए। और अंसर भाई बोलते भी तो खूब हैं। अम्मी खामोश हुई तो माही ने भी हिम्मत पाकर भाई की तारीफ कर डाली। भाई, मेरे भतीजे की पर्सनैलिटी ही इतनी शानदार है, कल के अखबार में भी उसके शो की खूब तारीफ आई थी। अनीसा पुप्पो क्यों भतीजे की तारीफ में पीछे रहती? माहीन, मेरा चश्मा तो ले आओ, प्रोग्राम शुरू हो गया है। अम्मी ने माहीन को दौड़ाया था। चलो आज हम भी देख लेते हैं तुम्हारे बेटे का प्रोग्राम। अब्बू खबरनामे की कुर्बानी देते हुए प्रोग्राम देखने बैठ गए। आज का प्रोग्राम मामूल से हटकर था। चैनल की सालगिरह थी और मशहूर गुलकार और अदाकार इकट्ठे ये सालगिरह मना रहे थे। कंपेयरिंग के लिए चैनल वालों के पास अंसर महमूद से बेहतर चॉइस और कोई ना थी। हाँ, प्रोग्राम में रंगीनी पैदा करने के लिए एक फीमेल होस्ट भी साथ चिपका दी थी, और वो पूरे प्रोग्राम में अंसर महमूद से चिपक कर बैठी रही। प्रोग्राम में तो रंगीनी पैदा हुई या नहीं, मगर यहाँ लाउंज में संगीनी जरूर पैदा हो गई थी। स्लीवलेस शर्ट, खुले गले और इंतहाई फिटिंग वाली शर्ट पहने ये कंपेयर हर 2 मिनट बाद कोई बेतुकी बात करते हुए अंसर की जानिब झुककर कहका लगाती। उसकी बेबाकी ने अंसर को भी खासा कंफ्यूज कर दिया था। स्टूडियो में कैमरे का सामना करते हुए टेलीफोन कॉल्स लेना, फरमाइश के मुताबिक वीडियो लगवाना और बात थी, मगर इस होशरुबा दोशीज़ा को ऑडियो वीडियो समेत बर्दाश्त करना कतन अलग तजुर्बा। खबरनामे वाला चैनल तो लगाना मरियम, शाम की खबरों में बता रहे थे कि कहीं कोई धमाका हुआ है। अनीसा फुप्पो ने ही हिम्मत करते हुए चैनल बदलवाने की कोशिश की। सुबह के अखबार में आ जाएगी खबर, अब्बू ठंडे ठार लहजे में बोले थे। निगाहें अभी भी स्क्रीन पर यूं जमी थी जैसे सामने बैठी अंसर को आंखों ही आंखों में सालम निगल लेंगे। 1 घंटे का प्रोग्राम था, और पूरा 1 घंटा अब्बू टीवी के सामने जम कर बैठे रहे। मेरा टेस्ट है कल, तैयारी करनी है। सबसे पहले मरियम खिसकी थी। उफ, यूनिफॉर्म मैला हो रहा है, सुबह कॉलेज भी जाना है। मरियम की तरह माहीन को भी याद नहीं रहा कि अगले दिन इतवार है।
उससे भी रफू चक्कर होने में आफियत जानी थी। जरा अब्बा जी को देखा हूँ, पता नहीं ब्लड प्रेशर की दवा ली थी या नहीं, कह रहे थे 2 दिन से सर में दर्द महसूस हो रहा है। अनीसा फुप्पो की को भी भूल गया कि रात खाने के बाद खुद अब्बा जी को दूध के साथ दवा खिला दी थी। लो, मेरी तो इशा को ही इतनी देर हो गई, ये माहिन की बच्ची टीवी ना चलाती तो कब की नमाज पढ़ ली होती। सबसे आखिर में घुट्टों पर हाथ रखकर अम्मी उठी थी। बैठ जाइए। अब्बू की गूंजदार आवाज घर भर में गूंजी और जो जहां था वहीं बैठ गया। तो किसने कहा था कि इतने शौक और एहतमाम से अब्बू को वो प्रोग्राम दिखाएं? तो किसने कहा था कि इतने बेहुदा प्रोग्राम में शिरकत करो? आज अम्मी भी सख्त जलाल में थी और अम्मी के जलाल का सामना करने को तो वो ज़हनी तौर पर तैयार था ही, मगर ये वहमो गुमान में भी ना था कि आज का प्रोग्राम सबकी मुखलिसाना कोशिशों के नतीजे में अब्बू भी देख चुके हैं और देखने के बाद बीपी खतरनाक हद तक शूट हो चुका है। ना लाइक, ना माकूल, ना हंजार। अब्बू जब गुस्से में होते तो उसके लिए कुछ इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते। कानों को ये अल्फाज सुनने की इतनी आदत हो चुकी थी कि स्कूल और कॉलेज के ज़माने तक उर्दू ग्रामर के पर्चे में उसे ना के साबके वाले अल्फाज लिखने में कभी कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। कल से तुम मुझे टीवी स्क्रीन पर नजर ना आओ। मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अब्बू जी, उसने मिनमनाते हुए कहा था। ये फील्ड ही ऐसी है मिद्दत बेगम, जो एक दफा चला गया सो चला गया। साहबजादे कॉम्पेयरिंग कर रहे हैं। कल माइक हाथ में पकड़कर गाने गाएंगे, परसों किसी फिल्म की ऑफर हो रही होगी, अभी भी वक्त है, किसी खोंटे से बांध दो। अच्छा, अब ऐसे भी ना कहें, मेरा बेटा है, कोई कुर्बानी का बकरा तो नहीं। अम्मी इस इस्तिलाह से जरा सा बिदकी थी। वो जैसे पेशगोई करते हुए उठ गए थे। मान लो मेरी बात, वरना सर पकड़कर रोना पड़ेगा। एक प्रोग्राम की इतनी कड़ी सजा? वो अम्मी की बात सुनकर सर पकड़कर बैठ गया। इसी को कहते हैं करे कोई और भरे कोई। ना वो पटाखा आपके साथ बैठती, ना आपको ये सब सुनना पड़ता। माही ने हमदर्दी की। मैं सबको सुनने पर तैयार हूँ, मगर खुदारा अभी मेरे हाथ पाँव मत बांधे। अभी मेरी उम्र ही क्या है अम्मी। इस उम्र में तुम्हारे अब्बू की गोद में तुम आ गए थे, अम्मी ने जताया। ले, ये कसूर भी मेरे खाते में डाल दें। वो खफा हुआ। अच्छा बस, मैंने कह दिया है, अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो चुपके से मुझे भी बता दो, फिर ना कहना कि अम्मी ने इतने अहम मामले में पर मेरी मर्जी ही नहीं ली। अब कह रही हैं पसंद बता दो, जब पसंद करने के दिन थे तो धमकी दी थी कि खबरदार किसी यूनिवर्सिटी फेलो को पसंद किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ तो और क्या, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते थे या लड़कियां ढूंढने? ऐसी तरबियत तो मैंने तुम्हारी की ही नहीं। अम्मी को अपनी तरबियत पर फख्र हुआ। तो एक वही जगह थी लड़कियां पसंद करने की। किसी बस स्टॉप या शॉपिंग मॉल में तो मुझे लड़की मिलने से रही। क्यों, खानदान में लड़कियां कम है क्या? वो झुंझला गई। खानदान की लड़कियों को ताड़ता फिरूं, ऐसी तरबियत की थी आपने? उसने उन्हें लाजवाब कर दिया। तो बस जो मुझे पसंद आई है उस पर चूं चरा ना करना। उन्होंने तंबीह की। अम्मी, प्यारी अम्मी, मैं 100% आपकी पसंद से ही शादी करूंगा, मगर अपनी अभी इतनी जल्दी मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। उसने मुल्तजी लहजे में बोला था। तो मेरे बच्चे, हम भी ऐसी कोई हथेली पर सरसों नहीं जमा रहे हैं। अभी तो लड़की ढूंढेंगे, बात चलाएंगे, और उन्होंने तुम्हें भी पसंद कर लिया तो मंगनी वंगनी कर देंगे। तुम्हारे अब्बू को तसल्ली हो जाएगी, वरना वो तो आजकल हर टीवी एक्ट्रेस को अपनी मुमकिन बहू के रूप में देख रहे हैं। उफ मेरे खुदाया, इतनी बेएतबारी! उसका जी चाहा अपने सर के बाल नोच ले। ले भाभी, लड़की बगल में, ढूंढिया शहर में। मेरी देवरानी की बहन की बेटी नजर आ गई आपको? और अपनी मरियम दिखाई ना दी? जहां फुप्पो को अम्मी की बात पर ताज्जुब हुआ था, वहां अम्मी फुप्पो की बात सुनकर शुजदर रह गई। मरियम? हाँ तो और क्या भाई, सच्ची बात है, मैंने तो जब भी अंसर के साथ किसी लड़की को सोचा तो जहन में मरियम के अलावा और कोई आई ही नहीं। क्या सजेगी माशाल्लाह दोनों की जोड़ी। इसमें तो कोई शक नहीं, चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। शहजादों जैसा मेरा अंसर तो परियों की तरह मेरी मरियम। अम्मी को भी फुप्पो की तजवीज़ जी जान से भाग गई। हाँ तो और क्या, घर का लड़का घर की लड़की, बाहर जाने की ज़रूरत भी क्या है। दादा जान ने भी इस फैसले के हक में राय दे दी थी, मगर अभी अब्बू की राय लेना बाकी थी, और वो भी यकीनन अम्मी, फुप्पो और दादा की राय से मुख्तलिफ ना होती। आज साबित हो गया मिद्दत बेगम कि आपने मरियम को कभी दिल से अपनी बेटी तस्लीम किया ही नहीं। अब्बू ने तासुब से अम्मी को देखा था। इस इल्ज़ाम पर अम्मी हक्का बक्का रह गईं। कहाँ अंसर, कहाँ मरियम, दोनों का कोई जोड़ भी है? क्यों, क्या कमी है मरियम में? माशाल्लाह खूबसूरत है, पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई। अम्मी ने भोलपन से कहा था। और आपके अपने बेटे में सिवाय खूबसूरती के इन खासियतों में से कोई एक खासियत भी है? अब्बू का लहजा कुटेला था। मरियम के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी, उसे एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा। अगर प्यार मोहब्बत की ऐनक उतार कर एक तरफ रखें तो खुद सोचें अंसर में क्या खूबी है। गुजारे लायक तालीम, इस डिग्री के साथ कोई नौकरी ढूंढने निकलेगा तो चंद हज़ार की नौकरी मिलेगी।
اب ایسا بھی جاہل نہیں میرا آنسر، اور کون سا اس نے نوکری کرنی ہے، آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹائے گا؟ امی برا مان گئی تھیں۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، بندے میں اتنی لیاقت ہونی چاہیے کہ اپنے بل بوتے پر بھی چار پیسے کما سکے، اور جہاں تک صاحبزادے کے موجودہ شوق کا تعلق ہے تو یہ بھی ہوائی روزی ہے۔ تم خود سوچو، کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا تعلق جوڑنا چاہو گی؟ ابو کی بات پر امی واقعی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ عنصر ابھی لاؤبالی ہے، غیر سنجیدہ ہے، اور مریم ماشاءاللہ سمجھدار اور میچور بچی ہے۔ کم از کم میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں، ابو نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے گویا بات ہی ختم کر دی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھیا؟ اپنی بچی اپنی آنکھوں کے سامنے رہے، اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ انیسہ پھپھو کو ابو کے انکار کا پتہ چلا تو دوڑی چلی آئیں۔ عنصر سے رشتہ جوڑنے میں آپ کو 100 قباحتیں نظر آ رہی ہیں، اور کسی انجانے لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیں گے آپ مریم کا ہاتھ؟ کیا گارنٹی ہوگی اس لڑکے کے اخلاق و کردار کی؟ محض اچھی جاب؟ آج کل تو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ایسی چھوٹی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اور انیسہ پھپھو کے پاس ابو کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ انہوں نے دور نزدیک سے چھانٹ چھانٹ کر ایسی مثالیں ابو کو بتائیں کہ ان کا دل لرز اٹھا۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ماہین کو اپنے علی کے لیے مانگ لوں گی، اور مریم کو آپ لوگ اپنی بہو بنا لیں گی۔ انجانے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا جھنجھٹ ہی کیوں پالیں؟ انیسہ پھپھو کی باتوں میں بہت وزن ہوتا تھا، اور امی رشک سے اپنی نند کو دیکھ رہی تھیں۔ میاں کو منانے کے لیے ایسے نکتے جانے ان کے ذہن میں کیوں نہ آئے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مریم سے اس کی رضامندی ضرور لے لو، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے۔ وہ بالآخر مان ہی گئے۔ آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ مریم کی رضامندی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ ہو؟ اور امی، کیا میری کوئی مرضی نہیں؟ وہ امی کے منہ سے ساری بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پڑھی لکھی اور میچور ہے۔ اور میرے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ عنصر، اب تم میرا دماغ خراب نہ کرو۔ اللہ اللہ کر کے سب اس رشتے پر متفق ہوئے ہیں تو تم اپنی 1.5 انچ اینٹ کی مسجد کھڑی کر رہے ہو۔ کیا کمی ہے مریم میں؟ وہ تو شکر کرو کہ گھر کی بچی ہے، اس لیے رشتہ طے ہو رہا ہے، ورنہ کہاں ملتی تمہیں اتنی گنوں والی بچی۔ بہرحال آپ لوگوں نے زندگی کے ہر معاملے میں مجھ پر اپنی مرضی ٹھونسی ہے، مگر اب یہ پریکٹس مزید نہیں دہرائی جائے گی۔ یہ فیصلہ زندگی بھر کے ساتھ کا ہے، اور یہ فیصلہ میں خود کروں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مگر ٹی وی پہ آنے سے پہلے تم نے اپنے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تمہارا مطالبہ مان لیں تو آئندہ تم ان کی مانو گے۔ امی کو بر وقت یاد آیا۔ اچھی بلیک میلنگ ہے۔ وہ جب بے بس کر دینے والی صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ کیا کمی ہے مریم میں؟ امی کے بعد پھپھو، پھر ماہین، اور اب اویس بھی یہی سوال پوچھ رہا تھا۔ میں فی الحال اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا اویس، اس نے رسانیت سے کہا۔ اویس تو چلا گیا، مگر وہ خود سے بھی یہی سوال پوچھنے سے باز نہ رہ سکا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ مریم میں کوئی کمی نہ تھی، اگرچہ آج تک اس نے مریم کے لیے کبھی اس انداز سے نہ سوچا تھا، مگر ذہن میں اپنے لیے جس قسم کی لڑکی کا خاکہ اسے سوچ رکھا تھا، مریم اس پر پوری اترتی تھی۔ اسے لڑکیوں میں صرف ایک خوبی اٹریکٹ کرتی تھی، اور وہ خوبی تھی کردار، اور مریم کے متعلق وہ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی دعویٰ پورے یقین سے کر سکتا تھا۔ اس کی پوری زندگی عنصر کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی، مگر سب گھر والوں کا رویہ اسے عجیب ضد میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سب ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسے مریم کو اس کے ساتھ منسوب کر کے وہ عنصر محمود کی ذات پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اور جیسے مریم نہ ہوتی کوئی ہفتے اقلیم کی دولت ہو گئی، اور وہ اس کا فرسٹ کزن ہونے کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے اس دولت کا حقدار بن رہا ہے۔ ورنہ مریم جیسی خوبصورت، تعلیم یافتہ اور سمجھدار بچی کے لیے لڑکوں کی کوئی کمی نہیں۔ اپنی ذات کی یہ نفی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اگر مریم خوبصورت تھی تو یونیورسٹی لائف میں مریم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں اس کی جانب ملتفت تھیں۔ یہ اور بات کہ اس نے کبھی ایسی لڑکیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وہ چاہتا تو اپنی پرسنالٹی کیش کروانے کے بہت سے موقع بھی ملے، مگر اپنے تمام تر لاؤبالی کے پن کے باوجود اس نے اپنی ذات کے وقار کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا تھا۔ تم عام لڑکوں سے بہت مختلف ہو عنصر، بے شک شکل سے تم لاپرواہ اور لاؤبالی سے لگتے ہو، مگر اندر سے انتہائی شریف اور بزدل سے شخص ہو۔ یہ اسی کلاس فیلو روما کے الفاظ تھے۔ ایک یونیورسٹی فنکشن میں وہ اسی کو کمپیئر تھی کہ اس کی کو کمپیئر تھی، وہ یہ ریمارک سن کر مسکرا دیا تھا۔ دراصل روما بی بی، آپ نے ابھی میرے والد بزرگوار کو نہیں دیکھا۔ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اتنا ہی شریف اور بزدل ہوتا۔ نہیں، میں نہیں مانتی۔ اس یونیورسٹی میں 1000 لڑکوں کے والد بزرگوار تمہارے ابو سے زیادہ سخت ہوں گے، مگر یہاں کون کسی کو آ کر چیک کرتا ہے؟ تم واقعی سب سے مختلف ہو۔ روما اسے سب سے مختلف قرار دینے پر مصر تھی، اور وہ اب یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں روما کے ان الفاظ کا مطلب کچھ اور تو نہیں نکلتا۔
तोहफा यार तुझ पर ऐसे परेशान हो रहा है जैसे 16वीं सदी की कोई दोशीज़ा। ये कमेंट्स अवैस ने इस वक्त दिए जब अंसर ने उसके सामने अपने खदशे का इजहार किया। मुझे लगता है वो मुझ में दिलचस्पी ले रही है, तो आप उसमें दिलचस्पी लेकर हिसाब बराबर कर दें। अवैस ने दांत निकोसते हुए तजवीज़ दी। वो तजवीज़ तो क्या मानता, उल्टा रोमा से दूर भागना शुरू कर दिया। और एक रोमा ही क्या, फरहीन, नाइमा और फिर अरूज, मुख्तलिफ लड़कियों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके करीब आने की कोशिश की थी। फिर जब हादसाती तौर पर टीवी पर आया तो वहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ ना थी। यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे मिले जिनके रवैयों ने उससे बावर करवाया था कि उसमें कुछ ख़ास है जो उसे सबसे मुनफरिद बनाता है। मगर यहाँ अपने घर में मुनफरिद मानना तो दरकिनार, सिरे से कुछ माना ही ना जाता था। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है हर अपने घरों में। तो आपको मरियम का साथ कबूल नहीं? माहीन बहुत अफसुर्दगी से पूछ रही थी। गुज़श्ता चंद दिनों में सभी इस बात से बहुत एक्साइटेड हो गए थे। दादा खुश थे कि लाडली पोती आंखों के सामने रहेगी। अब्बू मुतमईन कि बेटियों जैसी भतीजी ही बहू बनेगी। और अम्मी को तो मरियम वैसे ही बहुत अजीज थी, जो उनकी खुशियों का भी कोई ठिकाना ना था। माहीन डाइजेस्ट पढ़ पढ़ कर इस खदशे का शिकार थी कि कोई तेज सी भाभी आकर भाई ना छीन ले। अब मरियम को भाभी के रूप में सोचा तो जहन से हर अंदेशा, हर खदशा ज़ाइल हो गया। इतने ढेर सारे लोगों की खुशियाँ एक तरफ, मगर ज़हन में एक सवाल और भी उठा था। मरियम, हाँ, वो भी तो इस सारे किस्से की फरीक थी। वो क्या चाहती है? अगर उसकी जानिब से भी पसंदीदगी के जज्बात पाए जाते तो फिर इस प्रपोजल पर सोचा जा सकता था, और ये काम माहीन से बेहतर और कौन सर अंजाम दे सकता था। मरियम को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है भाई। रात के खाने के बाद माहीन शादाओं फरहान चली आई। अच्छा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट उमड़ आई। शायद खुशी हुई थी इस खबर से। वजह नहीं पूछी तुमने उससे? अगरचे वजह से वो बखूबी आगाह था। अंसर महमूद को नज़रअंदाज करना आसान तो नहीं था। वो मसरूर हुआ। मेरी तरह उसे भी ससुराल के नाम से बहुत खौफ आता है अंसर भाई, और आपसे शादी की सूरत में तो मज़े ही मज़े। वो कहती है कि ताई अम्मा तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, और ताया अब्बू वो तो मुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहते हैं। वही घर, वही रिश्ते, और फिर किसी और जगह शादी की सूरत में कुकिंग भी तो सीखनी पड़ेगी, और मरियम से तो आज तक रोटी भी गोल नहीं बनी। ससुरालों में तो इस बात पर भी कड़ा एतराज़ होता है। माहीन के पास मरियम की रजामंदी की बहुत सारी बातें थीं, लेकिन बहुत सारी वजूहात थीं, लेकिन अंसर महमूद इन वजूहात में कहीं भी नहीं था। अब रिश्ते के लिए राजी होना कम अज़ कम उसके लिए मुमकिन ना रहा था। लेकिन इतने ढेर सारे लोगों की नाराज़ी सहना भी तो उसके लिए मुमकिन ना था। चलो माहीन, तुम्हें कॉलेज छोड़ रहा हूँ। सुबह अपनी नींद की कुर्बानी देते हुए वो उठा था। शुक्रिया भाई, मैं और मरियम अब रिक्शे पर जाते हैं। उसने रुखाई से ऑफर ठुकरा दी। बहुत दिन हो गए अम्मी, आपके हाथ का गाजर का हलवा नहीं खाया। बहुत लाड से अम्मी से फरमाइश की गई, इस खदशे के बावजूद कि अम्मी हमेशा की तरह भी गाजर लेने के लिए बाजार दौड़ा देंगी। तुम्हारे दादा जान का ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है, अम्मी सर्द मोहरी से बताकर चली गई। और वो गाजर के हलवे और दादा के ब्लड प्रेशर का ताल्लुक जोड़ता ही रह गया। मीठा खाने से शुगर में इजाफा तो सुना था, मगर यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ने जा रहा था। मैं सोच रहा हूँ अब्बू के कल से आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। खाने की मेज़ पर डरते डरते अब्बू को मुखातिब किया। मेरे ऑफिस में आजकल सालाना मुरम्मत हो रही है। अब्बू के जवाब से उसके पसीने छूट गए, हालांकि जानता था कि मुरम्मत से मुराद ऑफिस की मेंटेनेंस है। दादा जान, मैंने आपके लिए डॉक्टर शब्बीर से अपॉइंटमेंट लिया है, चलिएगा अपना तफसीली चेकअप करवाने। डॉक्टर शब्बीर से अपॉइंटमेंट लेने के बजाय मलिकुल मौत से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ले लेते? औलाद की खुदसरी देखने से तो बेहतर है कि बंदा मर ही जाए। अच्छा भला पिछले साल टाइफाइड बिगड़ गया था, जाने अल्लाह ने क्यों। सिर्फ एक हफ्ते के सोशल बाइकॉट ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और सबको शायद पहले से ही इल्म था कि वो मान जाएगा। जब ही अम्मी ने उसके मुंह से हाँ सुनते ही बफूरे जज्बात में उसे वो शॉपिंग दिखाना शुरू कर दी जो वो चुपके चुपके कई दिनों से कर रही थी। ये जोड़ा कितना खूबसूरत है ना। फंक्शन पर मरियम ही पहनेगी, मरियम यही पहनेगी। तुम्हें पसंद है बेटे? इतना हैवी सूट? सादा सा मंगनी का फंक्शन ही तो होगा। बल्कि मेरे ख्याल में तो इसकी भी ज़रूरत नहीं, मैंने हथियार डाल तो दिए हैं। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसते हुए बोला। मंगनी नहीं बेटे, निकाह। तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि कच्चा काम क्यों करें, थोड़ा सा खर्चा ही ज़्यादा आएगा, निकाह ही कर लेते हैं। अम्मी अपनी फितरी सादगी से बता रही थी। इतनी बेएतबारी, गोया मेरे इकरार पर आपको यकीन ही नहीं। इस बार सदमा वाकई शदीद था, और फिर निकाह के दिन तक उसका दिल यही चाहता रहा कि अब्बू के खदशात को दुरुस्त साबित कर दे। मगर फिर फितरी बुज़दिली आड़े आई या अज़ली शराफत, और फिर वही हुआ जो सबने चाहा था। माहीन, यार एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दो, सर में शदीद दर्द हो रहा है। वो दुपट्टे की झलक देखकर किचन में आया था, मगर वहाँ माहीन के बजाय मरियम को खड़ा देखकर ठिठक कर रुक गया।
बहुत दिनों से दोनों के बीच एक अनदेखी दीवार हायल थी। अब ना तो मरियम पहले वाली बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब करती थी और उसने तो निकाह के बाद वैसे ही बात करना तर्क कर दिया था। मैंने अपने लिए बनाई थी, तुम ले लो। मरियम ने संजीदगी से कप उसकी जानिब बढ़ाया और किचन से बाहर चली गई। वो चुपचाप उसे देखता रहा। मरियम की बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। आज मेहंदी का फंक्शन था। माहीन भी मरियम के साथ इनवाइटेड थी और मरियम से ज़्यादा ज़ोर शोर से तैयारियों में मसरूफ़ थी। सारी तैयारी मुकम्मल है, बस अब अबू इजाज़त दें तो वो बात बन जाए। माहिन पुरुमीद थी कि अबू इजाज़त दे देंगे कि अम्मी उनसे एक बार बात कर चुकी थी। रात का फंक्शन है और अनजाने लोग, अगर तुम साथ जाओ तो ठीक है, बच्चियों को अकेला नहीं भेजूंगा मैं। ले, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे तो घुटनों में शदीद दर्द है। 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, कैसे बैठूंगी मैं? बस फिर कोई ज़रूरत नहीं है भेजने की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मगर ये कल की बात थी और अब्बू पहली बार में तो कोई बात मानते ही कब थे, इसीलिए आज अम्मी एक और कोशिश करने जा रही थी। बस तुम लोग तैयार हो जाओ, मान जाएंगे तुम्हारे अब्बू। उन्होंने माहीन और मरियम और माहीन को दिलासा दिया। रहने दे ताई अम्मा, नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मरियम ने उन्हें रोका था। करीब ही अंसर बैठा बज़ाहिर खामोशी से मैच देख रहा था, मगर सारा मामला उसके इल्म में आ चुका था। क्या जरूरत थी माही ने इतने इसरार की? तायाबू ने कुछ सोच कर ही मना किया होगा। अम्मी के उठते ही मरियम ने उसे दोबारा घुरका था। क्यों, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, कोई ऐरी ऐरी नथु हैरी की तो नहीं? और अब्बू को तो पूरी दुनिया में अपने अलावा कोई काबिल एतबार दिखाई ही नहीं देता। माहीन के कहने पर अंसर के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बाप के लिए दोनों बहन भाइयों की सोचों में किस कदर मुमासलत थी। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग माहीन, जिन्हें कोई टोकने वाला, मना करने वाला मौजूद हो, जो जो उनके लिए अच्छा बुरा सोच सके, उनकी फिक्र कर सके। खुदा का शुक्र किया करो। अगरचे वो बहुत धीमे लहजे में माहीन से मुखातिब थी, अंसर के तेज कानों ने जुमला कैच कर लिया। अंसर बेटे, बहनों को छोड़ आओगे? बहनों को? इसी लम्हे अम्मी खुश खुश अंदर आई थी, गोया इजाजत दिलवाने का मौका सर कर लिया था। कौन सी बहनों को अम्मी? माहीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। उफ़ो, एक तो तुम मेरे अल्फाज पकड़ लिया करो। सिर्फ 2 घंटे की इजाजत मिली है और वो भी इस शर्त पर कि अंसर ही छोड़ कर आएगा और वही लेकर आएगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अब्बा जी के लिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, अम्मी कहकर चली गई। उफ अल्लाह, अभी तो मैंने बालों को शैम्पू भी करना है। माहीन भी उठकर भागी थी। उसके उठते ही मरियम ने भी बाहर का रुख करना चाहा। सुनो, अंसर ने जाने क्यों उसे पुकार लिया। जी। वो हैरत ज़दा होकर पीछे मुड़ी। इस तमीज़ भरे जी को अंसर ने खासा एंजॉय किया। अब्बू से तो इजाज़त ले ली और मेरी इजाज़त, क्या उसकी कोई ज़रूरत नहीं? तो क्या तुम इजाज़त? तुम नहीं, आप। उसने मरियम की बात मुकम्मल होने से पहले ही गोया तस्हीह की। वो कुछ लम्हे संजीदगी से उसे तकती रही, फिर बिना कुछ कहे पलट गई। अंसर ने बहुत हैरान होकर उसके रवैये का मुशाहिदा किया था। मुझे अंसर महमूद से बात करनी है। टेलीफोन का रिसीवर उठाते ही एक मुतरन्नम आवाज़ कानों से टकराई थी। वो इस वक्त घर पर नहीं है। मरियम ने नाम और काम पूछे बगैर टाला था। इस किस्म के रॉन्ग नंबर आजकल बहुत आने लगे थे। देखे, झूठ न बोलें प्लीज़, मेरी उनसे बात करा दें। मैंने सुबह भी फ़ोन किया था तो आपने यही जवाब देकर फ़ोन बंद कर दिया था। वो अगरचे पहली बार ये आवाज़ सुन रही थी, लेकिन हो सकता था कि सुबह फ़ोन माहीन ने अटेंड किया हो। मैंने आपसे कहा है ना कि अंसर घर पे नहीं है। आप अपना नाम और पैगाम बता दें, वो आएंगे तो आपका मैसेज मिल जाएगा उन्हें। आपको कैसे बताऊं, काम तो मुझे अंसर से ही है, उसी के पास मेरे दर्द का इलाज है। दूसरी तरफ से ठंडी आ भरी गई। आपको गलत फहमी हुई है, ये किसी डॉक्टर अंसर का नंबर नहीं। लड़की के जुमानी अंदाज पर उसे गुस्सा आ गया था। आवाज़ भी ज़रा तेज़ हो गई थी। अपने कमरे से बाहर निकलते अंसर ने ये सारी यकतरफा गुफ्तगू सुनी थी। मरियम का गुस्से में आना उसे अच्छा लगा था। वो बहुत दिनों से देख रहा था कि मरियम बहुत चुप-चुप सी रहने लगी है, ऐसी संजीदगी जो कभी भी उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं रही थी। वो बहुत हँसमुख लड़की थी, मगर अब उसकी हँसी सुने एक मुद्दत हो गई थी। वो कई दिनों से लाशऊरी तौर पर उसके मुतल्लिक सोच रहा था और जब लाशऊर की ये चोरी शोर की गिरफ्त में आई तो वो वाक़ई हैरान रह गया। तो फिर क्या हुआ? मकरूहा है वो, मेरी जायज़ शरई और कानूनी रिश्ता है उसे देखने का, उसे सोचने का पूरा हक रखता हूँ। जब ये ताल्लुक नहीं जुड़ा था तब कभी टेढ़ी निगाह तक नहीं डाली थी। उसने खुद को मुतमईन करने की कोशिश की। अच्छा, मगर कुछ दिन पहले तो बहुत ऐंठे हुए थे आप, अंदर से आवाज़ आई। हाँ, वो भी मेरा फितरी रद्द-ए-अमल था। वो अपनी बदलती हुई कैफियत का खुद ही मज़ा ले रहा था। घर वालों से नाराज़गी और खफगी आहिस्ता-आहिस्ता दम तोड़ गई थी। अब्बू का ऑफ़िस जॉइन कर लिया था, सो वो भी आजकल उससे हाथ से खुश थे। वक़्त गुज़रा तो घर वालों के लिए, ख़ुसूसन अब्बू के लिए दिल में मौजूद नाराज़गी कम होने लगी। जानता था कि वो उसे कितना प्यार करते हैं, मगर शायद इस डर से कि इकलौता बेटा लाड प्यार में बिगड़ ना जाए, उन्होंने इस प्यार के इज़हार में हमेशा कंजूसी से काम लिया था।
अब उसे एक शिकवा और भी था कि उन्होंने ज़िंदगी के हर मामले में उस पर अपनी मर्ज़ी ठोंसी, मगर ये शिकायत भी शदीद गुस्से के वक़्त ही मुँह से निकलती थी। गुस्सा उतरने के बाद जब दिमाग ठंडा होता तो वो खुद तस्लीम कर लेता कि उसकी ज़ात के लिए किए गए अब्बू के फ़ैसले हमेशा बेहतरीन साबित होते हैं, और अब ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला जो उसके माँ-बाप ने उसके लिए किया था, उसे कबूल करने के बाद यकीनन आइंदा ज़िंदगी सहल गुज़रना थी। मगर वक़्त गुज़रने के साथ जहाँ उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया था, वहीं मरियम के रवैये ने उलझन में डाल दिया। वो बहुत चुप-चुप रहने लगी थी। घर में और किसी ने ये तब्दीली नोट नहीं की, वो सब उसकी संजीदगी को इम्तिहानों की टेंशन पर महमूल कर रहे थे। सारी रात जाकर पढ़ती रहती है, कितना समूह निकल आया है, और खाती-पीती खाक नहीं। उस रोज़ जब वो रात का खाना बराए नाम ही खाकर उठ रही थी, जब अम्मी ने खफगी से टोका, "अच्छी भली तो हूँ ताई अम्मा।" वो फीकी सी हँसी हँसी। अंसर ने एक निगाह उस पर डाली। वो वाकई बहुत कमज़ोर हो रही थी। चंद दिनों के अंदर 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 चंपेई रंगत कुमला सी गई थी। इस रिश्ते के जुड़ने से पहले घर के दूसरे अफराद की तरह वो भी उसे कुछ कम अजीज ना थी, और अब तो ताल्लुक ही और था। क्या परेशानी है उसे? वो बेचैन हो गया। उस रोज रात को रिकॉर्डिंग से घर वापस आया तो घर में बहुत खामोशी थी। क्या हुआ? सब लोग कहाँ हैं? उसने अम्मी से पूछा, जो ईशा की नमाज के लिए वजू कर रही थी। माही ने अपनी दोस्त से नोट्स लेने थे, तुम्हारे अब्बू के साथ गई है, और अब्बा जी डॉक्टर वास्ते की तरफ गए हैं। और मरियम? वो पूछना चाह रहा था मगर झिझक सी आड़े आ गई, सो चुपचाप अपने कमरे का रुख किया। अंसर, अचानक अम्मी ने पुकारा था। जी। वो मुड़ा। बेटा, थकन तो बहुत हो रही होगी, है ना? वो जैसे उसे कोई काम कहते कहते रुकी थी। क्या है अम्मी, कुछ लाना है बाजार से? उसने मुस्कुरा कर पूछा। अरे नहीं, बाजार से क्या मंगवाऊंगी, मुझे तो मरियम का ख्याल आ रहा है। बच्ची बेचारी फंस गई होगी, 1 घंटा हो गया है गए हुए। अब अब्बा जी को तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता, गप्पे लगाने में मशगूल होंगे डॉक्टर वासी के साथ। मरियम गई है डॉक्टर वासी के पास? क्यों, क्या हुआ है उसे? वो फिक्रमंद हुआ। यही तो पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है उसे, देखते ही देखते इतनी कमजोर हो गई है। माहीन बता रही थी कि कॉलेज में भी बहुत नकाहत हो रही थी उसे। अब बगैर नाश्ता किए कॉलेज जाएगी तो चक्कर तो आएंगे। अब्बा जी लेकर गए हैं डॉक्टर वास्ती के, कोई ताकत का इंजेक्शन लगाएंगे या भूख के लिए कोई टॉनिक लिख देंगे। मैंने तो अब्बा जी से कहा था कि डॉक्टर साहब से कहकर। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने मुस्कुराकर उनकी बात काटी। हुक्म क्या दूंगी मेरे बच्चे, क्लिनिक से मरियम को लेकर आ जाओ, बेचारी का टेस्ट भी है कल। वो तो जाना ही नहीं चाह रही थी, मगर मैंने जबरदस्ती भेज दिया। अच्छा, ले आता हूँ। उसे ताबेदारी दिखाई, और सच तो ये था कि वो वाकई मरियम से बात करने के लिए किसी मौका की तलाश में था। डॉक्टर वास्ती का क्लिनिक घर के करीब ही था। मरियम ने चेकअप करवा लिया था, और तवक्को के ऐन मुताबिक दादा जान और डॉक्टर वास्ती अखबार मेज़ पर फैलाए चाय की चुस्कियां लेते हुए किसी लाए हल मसले को सुलझाने में मसरूफ थे। मरियम चुपचाप बैठी थी। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। डॉक्टर वासी से सलाम दुआ के बाद उसने मरियम को मुखातिब किया। मैं भी चल रहा हूँ। दादा ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कप मेज पर रख दिया। अरे वाह, ऐसे ही चल रहे हो? मरियम बेटी चली जाएगी अंसर के साथ, अभी चाय का एक दौर और चलेगा, और मैंने तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी चेक करना है। बिलावजह भड़क उठते हो। डॉक्टर वासी ने उन्हें जल्दी से रोका। अंसर ने मशकूर निगाहों से उन्हें देखा था। ऐसे ही भड़क उठता हूँ, तुम्हारी मंतक ही उल्टी होती है। जाने किस बात पर दोनों फारिग बूढ़े उलझ रहे थे। मरियम और अंसर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। अच्छा बेटे, दवा बाकायदगी से खाना और डाइट का भरपूर ख्याल रखना। डॉक्टर वासी ने शफकत से मरियम के सर पर हाथ रखा। और बरखुरदार, तुम्हारे निकाह के लड्डू अभी तक नहीं पहुंचे मेरे पास। 2-3 दिन में मिठाई खाने में खुद घर आऊंगा। इस बार अंसर से बेतकल्लुफी से कहा गया। जी जरूर। वो गुफ्तगी से मुस्कुरा दिया। मरियम इस जिक्र पर खफीफ सी हो गई थी। चलो, उसे वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। मरियम भी चुपचाप पीछे हो ली। किस चीज की टेंशन ले रही हो तुम? मेन रोड पर आते ही अंसर ने खामोशी को तोड़ते हुए पूछा था। किसी चीज की नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। कोई मसला है तो जरूर कोई मसला है तो जरूर। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत चुप चुप और खोई खोई से रहने लगी हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो मरियम, शायद हम एक दूसरे के दोस्त भी हैं। उसका अंदाज बहुत दोस्ताना था, मगर मरियम चुप रही। मुझे शक हो सकता था कि कहीं तुम्हारे डिप्रेशन और टेंशन की वजह हमारे दरमियान कायम होने वाला ताल्लुक तो नहीं, मगर बावसूख जराए के मुताबिक तुम इस रिश्ते पर राजी थी, चाहे इसलिए ही सही कि तुमसे रोटियां गोल नहीं बनती। एम आई राइट? उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा, मगर वो सपाट चेहरा लिए चल रही थी। बहरहाल, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत शरीफ सा बंदा हूँ। गोल चौकोर मुस्ततिल जैसी भी रोटियां पकाओगी खा लूंगा। उसका अंदाज इस बार भी शरारती था। यार, कहीं तुम्हारी परेशानी की वजह वो लड़कियां तो नहीं जो आजकल टेलीफोन पर मेरे मुतालिक पूछ पूछ कर तुम लोगों को जिच कर देती हैं? मेरी तरफ से इजाज़त है, डांट कर झिड़क कर जैसे मर्जी से ही उन्हें फ़ोन करने से मना कर दिया करो। आखिर अब उसका हक है
اب آخر اب اس کا حق ہے تمہارے پاس، میں تو پلیز انصر، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے رکھائی سے اس کی بات کاٹ دی تو وہ واقعی خاموش ہو گیا۔ باقی سارا راستہ وہ لب بھینچے چلتا رہا اور مریم سارا وقت آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے پھوپھا جان کی طرح مجھے بھی شوگر ہو گئی ہے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب شدید بھوک کے احساس سے آنکھ کھلی، کچن میں جانے کے لیے لاؤنج میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، اور لاؤنج میں داخل ہونے کے ساتھ ہی مریم کی سسکیوں نے قدم روک لیے۔ بنا آہٹ کیے وہ مزید آگے بڑھا۔ لاؤنج میں زیرو پاور کی بلب کی مدھم روشنی میں وہ صوفے پر بیٹھی مریم کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ شاید کسی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کسی موقع پر آپ کو میرا خیال نہیں آیا مما؟ آپ بہت بھرپور زندگی گزار رہی ہیں، آپ کو آپ کی زندگی مبارک، مگر سچ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب آپ نے میری کمی محسوس کی ہو؟ وہ رو رہی تھی۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا کہ رونے کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سب بہت پیار کرتے ہیں مما، شاید آپ بھی مجھ سے اتنا پیار نہ کر سکتی تھیں، مگر کبھی بہت سارے پیار کرنے والوں کے درمیان بھی آپ تنہا ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسا کندھا چاہیے ہوتا ہے جس سے لگ کر آپ اپنی ہر پریشانی، ہر دکھ شیئر کر سکیں۔ کسی کے گلے لگ کر اب بہت سارے آنسو بہانے کو دل کرتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ میں کتنی… وہ جانے کیا کہہ رہی تھی کہ انصر نے آگے بڑھ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ اس کی آمد سے قطعی لا علم تھی، یکدم ڈر گئی۔ السلام علیکم چچی جان۔ یک طرفہ بات چیت سے انصر کو مخاطب کا علم ہو چکا تھا، سو تمیز سے سلام کیا۔ یہ بے وقوف لڑکی آپ کو پریشان کر رہی تھی؟ اس نے ایک نظر مریم پر ڈالتے ہوئے کہا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں اور چھوٹی سی ناک گلابی ہو رہی تھی۔ ارے نہیں چچی جان، فکر کی کوئی بات نہیں، بس پیپرز نزدیک ہیں اسی لیے ٹینشن لے رہی ہے، اس نے انہیں تسلی دی تھی۔ مریم نے خاموشی سے اٹھ کر باہر جانا چاہا، مگر اس کے اٹھتے کے ساتھ ہی انصر نے اس کا بازو ہاتھ پکڑ کر دوبارہ ساتھ بٹھا لیا تھا۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹا، زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن اپنی اولاد کی دوری کبھی کبھی ناقابل برداشت دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوسری طرف مہرین بھی رو رہی تھی۔ میں مشکور ہوں تمہارے دادا جان کی، تمہارے والدین کی، انہوں نے واقعی میری مریم کو مجھ سے بڑھ کر چاہا ہے، اور اب تمہارے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ کر تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا احسان مند بنا لیا ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، جبکہ مریم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس سے مسکراتے ہوئے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ ٹھیک ہے چچی جان، ہم انتظار کریں گے آپ کا۔ نکاح پر تو آپ کا آنا ممکن نہ ہو سکا، مگر رخصتی پر آپ کو ہر حال میں آنا ہوگا۔ جی جی ٹھیک ہے، ہاں میں مریم کو بھی سمجھاتا ہوں، ہر دفعہ یہ پیپرز کی ٹینشن اسی طرح لیتی ہے، آپ فکر نہ کیجیے گا۔ 2-3 منٹ تک انہیں تسلی دلاسا دینے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ خود سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد وہ خفگی سے بولی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے انصر، وہ بے چارگی سے بولی۔ جب تک تم مجھے اپنا مسئلہ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جھنجھلائی۔ رات 2:30 بجے تمہیں چچی جان سے گلے مل کر رونے کی خواہش بیدار ہو رہی ہے۔ اپنا دکھ سکھ کہنے کے لیے ان کا کندھا درکار ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھی چچی کو تم تنگ کر رہی ہو، حالانکہ تمہاری یہ خواہش میں بھی پوری کر سکتا ہوں۔ میرا کندھا حاضر ہے، جتنے چاہو آنسو بہا لو، اس نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ تم کتنے بڑے ایکٹر ہو انصر، تم ڈراموں میں کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس بار مریم کی برداشت کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ تبھی پھٹ پڑی تھی۔ ہاں آفرز تو بہت ہیں، غور کر رہا ہوں آج کل۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہ تھا۔ مریم کے آنسو دوبارہ گال بھگونے لگے۔ تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی اور نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اس بار سنجیدگی سے تنبیہ کی گئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، مسئلہ کیا ہے یار؟ اپنی ہر پریشانی، ہر خدشہ بلا جھجک مجھ سے شیئر کر ڈالو۔ اس کا انداز دوستانہ تھا، مگر ایک بار زبان کھولنے کے بعد وہ اب بالکل خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے شاید تم میری طرف سے انسیکیور فیل کر رہی ہو۔ امی ابو کی طرح تمہیں بھی لگتا ہوگا کہ میں جس فیلڈ میں ہوں وہ بہت خطرناک ہے، قدم قدم پر ایمان ڈگمگانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مگر یار، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ تم جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے میں کہیں اور نگاہ ڈالنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ میرا کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے اور میں نیا کانٹریکٹ سائن نہیں کر رہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ فیلڈ میرے بھی مزاج کے مطابق نہیں، باوجود پیسے اور شہرت کے میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پایا۔ اب سیدھے طریقے سے صرف ابو کے آفس جایا کروں گا۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق اسے تسلی دے رہا تھا، اتنے دن تک دماغ کھپانے کے بعد صرف یہی ایک وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ انصر تم اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو؟ ایک کمپرومائز کو اتنے خلوص سے کیوں نبھا رہے ہو؟ ایک انچاہے رشتے کو نبھانے کے لیے خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہو؟ وہ آخر بے بس ہو کر بول پڑی تھی۔ کیسا کمپرومائز اور کون نبھا رہا ہے؟ سچ مجھ کچھ سمجھ نہ پایا تھا۔ میں اس بندھن کی بات کر رہی ہوں جو ہم دونوں کے بیچ جڑا ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔
तो फिर वो अब भी समझ ना पाया। यूं पोज मत करो, मैंने खुद तुम्हारी और रवैस की बातें सुनी थी। तुम बहुत बुज़दिल हो अंसर, और मैं बहुत बेवकूफ़। निकाह से पहले मैं जान ही ना पाई कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो। सब घर वालों ने तुम्हारा रिएक्शन मुझसे छुपाया, और मैं अपनी पढ़ाई में ऐसी मगन के किसी बात की तरफ तवज्जो ही नहीं गई। अगर उस रोज़ तुम्हारी बातें ना सुन लेती तो इस खुशफहमी में मुब्तला रहती कि तुम इस निकाह पर राजी थी। तुमने बहुत बुरा किया आंसर, मैं तो तुम्हारी दोस्त भी थी। अगर तुम्हारी बुज़दिली तुम्हें इनकार नहीं करने दे रही थी तो मुझसे कहा होता, मैं कर देती दादा जान को इनकार। वो रोते हुए शिकवा कर रही थी और अधूरी कहानी चंद लम्हों में ही मुकम्मल हो गई। तो ये बात थी। उसने एक लंबी सी ठंडी सांस भरी। मेरी बेवकूफ़ ज़ोजा मोहतरमा, पता नहीं सब लोग तुम्हें इतना अक्लमंद क्यों समझते हैं। वो मुस्कुराया। प्लीज़ आंसर, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो ड्रामा। मैं सारी ज़िंदगी इस एहसास के साथ बसर नहीं कर सकती कि बगैर चाहत के ज़बरदस्ती तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाई गई हूँ। और अभी भी वक्त नहीं गुजरा। मैं दादा जान से खुद बात करूंगी। हमारे रास्ते खुश इसलूबी से अभी भी जुदा हो सकते हैं। मैं इस बात का स्टॉप इट मरियम। उसकी बर्दाश्त की अब हद खत्म हो चुकी थी। वो एकदम बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी गलतफहमियों का कैसे अजाला करूं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, मैंने खुद तुम्हारी बातें सुनी थी। अच्छा बाबा, सुन ली थी बातें, मगर अब खुदा के लिए खामोश हो जाओ और मुझे भी कुछ बोलने का मौका दो। वो जिद हुआ। मैं मानता हूँ कि मैं निकाह के लिए राजी नहीं था। उसने तस्लीम किया। मरियम ने हैरानी से उसे देखा, जैसे इतनी जल्दी तस्लीम करने पर यकीन आया हो। मुझे अपने घर वालों की बेतबारी पर गुस्सा था। मेरी सारी जिंदगी उनके सामने खुली किताब की मानी थी, फिर भी वो ये सोच रहे थे कि शोबिस की चकाचौंध में मेरे कदम डगमगा जाएंगे, सिर्फ इसलिए वो मेरे पाँव में निकाह की जंजीर डालना चाह रहे थे। हाँ, मुझे गुस्सा था इस बात पर। और फिर सबका रवैया, वो रवैया, अम्मी अब्बू दादा फूफो सब मुझे ये बावर करवा रहे थे कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, और मेरी खुशकिस्मती कि मुझे तुम जैसी लड़की का साथ मिल रहा है। तुम खुशकिस्मत हो, बहुत ज़्यादा ज़हीन, समझदार, तालीम याफ्ता, और मुझ में सिरे से कोई खूबी ही नहीं। अपनी ज़ात की ये नफ़ी मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी, और फिर मैंने माहीन के ज़रिए तुम्हारी मर्ज़ी मालूम करवाई। अगर एक बार मुझे ये पता चल जाता कि तुम मेरी वजह से इस रिश्ते पर राज़ी हो तो मेरा हर शिकवा दम तोड़ देता, मगर तुम्हें भी अंसर महमूद से कोई सरोकार ना था। मेरी जगह कोई भी XYZ होता तो तुम्हें कबूल था, बस तुम्हें खौफनाक किस्म की सांसों और अजनबी ससुराल से डर लगता था। कॉम्प्रोमाइज़ तो तुम्हारी तरफ से सामने आया था मरियम। तुम मुझे मोर्दे इल्ज़ाम क्यों ठहरा रही हो? जो सच था वो मैंने माहीन से कहा। मैं क्यों झूठ बोलती? निकाह से पहले ना तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला थी, बल्कि दैट्स द पॉइंट मरियम बीबी। निकाह से पहले, हाँ, निकाह से पहले मैं भी तुम्हारी चाहत में गिरफ्तार नहीं था। तुम मुझे बहुत प्यारी थी, एक दोस्त की हैसियत से, घर के एक फर्द की हैसियत से। मगर खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने घर का एक फर्द ही समझा। जहन के बैद तरीन गोशों में भी कभी कोई उल्टा सीधा ख़्याल नहीं आया, और यकीन मानो अगर खुदा न खास्ता तुम्हारी शादी कहीं और होती तो मैं हंसी खुशी बारात को कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करता। मगर ये भी सच है कि निकाह के बाद जहाँ आहिस्ता आहिस्ता घर वालों के लिए दिल में दबी खफगी दम तोड़ने लगी, वहाँ तुम्हारे मुतालिक कुछ खास किस्म के जज्बात भी बेदार होने लगे। मुझे नहीं पता कि ये मोहब्बत है या कुछ और, मगर मैं तस्लीम करता हूँ कि अब मैं तुम्हें सोचता भी हूँ, चोरी छुपे देखता भी हूँ, तुम्हारी परेशान शक्ल देखकर बेचैन भी होता हूँ, और तुम्हें किसी भी तरह सही हँसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। अगर निकाह के 2 बोलों के बाद कुछ इसी किस्म की मोहब्बत दिल में परवान चढ़ती है तो हाँ, मैं अब मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। और ये जो तुम्हारे आंसू हैं ना, मुझे लग रहा है मेरे दिल पर गिर रहे हैं। बात के आखिर में उसने मुस्कुराते हुए मरियम के आंसू अपनी उंगलियों की पोरों पर जज़्ब किए। इतनी बेयकीनी से ना देखो मुझे, कितना गोल्डन पीरियड तुमने शको शुबे की नज़र कर दिया। मैं तो वैसे वो बातें करके भूल भी गया और तुमने उन्हें सीने से लगा लिया, बेवकूफ़ लड़की। बहुत दफ़ा हम किसी ख़ास कैफ़ियत, किसी ख़ास मूड के ताबे होकर बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं जो वक़्त गुज़रने और मूड बदलने के बाद अपने मायने खो देती हैं। तो तुम नहीं, आप, अंसर ने मुस्कुराकर तस्दी की। अच्छा मेरा हाथ तो छोड़ दो आप, उसने आहिस्तगी से कहा। लड़की, मुझसे शरीफ शख्स और कौन मिल सकता था तुम्हें? उसने मुस्कुराते हुए आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़ दिया। मानती हूँ, वो धीमे लहजे में बोली। चलो शुक्र है मुझे भी इकरार का कोई जुमला तो सुनने को मिला, चाहे 2 हरफी ही सही। वो हंसते हुए बोला तो मरियम भी मुस्कुरा दी, हर खदशे से पाक मुस्कुराहट।